हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, हम लोगों ने लास्ट टर्न पे चालू किया था न्यूरल सिस्टम को, और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को पढ़ लिया था। ठीक है जी। न्यूरॉन के बारे में जानकारी कर ली थी, तो हम लोग के जो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं इस चैप्टर में। हम लोगों ने न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम और न्यूरॉन के बारे में जानकारी कर ली। न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम लोग चौथे टॉपिक को चालू करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा हैवी ग्रेविटी वाला था, इसलिए मैंने आपका रोक दिया था लास्ट लेक्चर में कि आगे पढ़ेंगे। चलिए, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आने की उम्मीद रहती है। ये तो पिछले में आपको आपका माइलिन शीट से रिलेटेड क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। तो पिछला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है, और इस वाले टॉपिक में से आपको ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स जो हैं एक्साइटेबल सेल्स हैं, इनका एक्साइटेशन हो सकता है बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज स्टेट, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में। पोलराइज स्टेट, हम उस मेम्ब्रेन को पोलराइज स्टेट में बोलते हैं जिसमें चार्ज हो, because their membranes are in a polarized state. Do you know why the membrane of a neuron is polarized? Because there is the presence of charge. A positive charge is present on the outer surface, whereas on the inner surface negative charge is present. That's why this membrane is considered as a polarized state. Different types of ion channels are present on the neural membrane. Different types of ion channels are present on neural membrane. Neural membrane पे ion channels के different type present, and these ion channels are selectively permeable to different ion. And these ion channels are ion channels which are present over the neural membrane. These ion channels are selectively permeable to different ions. Say for this ion channel is selectively permeable sodium, this is for potassium, and this is for chloride, etc. So these are the ion channels which are selectively permeable to different ions. When a neuron is not conducting any impulse at the resting stage, when neuron is not conducting any impulse, that is at the resting state, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium. At that time, this axonal membrane is comparatively more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium. Similarly, the membrane is impermeable to negatively charged proteins present in the exoplasm. So at the time, at the resting state, this axonal membrane, plasma membrane of axon, this axonal membrane is at that time more permeable to sodium and nearly impermeable to potassium and nearly impermeable to sodium. As well as this membrane at resting stage is almost impermeable to negatively charged proteins present in the exoplasm. Exoplasm means cytoplasm of axon. Exoplasm. Okay. Consequently, the exoplasm inside the axon contains high concentration of sodium and negatively charged proteins and low concentration of sodium. Consequently, exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium, because this axonal membrane at resting stage is somewhat permeable to potassium but impermeable to sodium. More permeable to potassium and almost impermeable to sodium. Therefore, some amount of sodium diffuses inside, and because of the permeability, some amount of sodium diffuses inside, and sodium is present higher concentration in the exoplasm,
and negatively charged proteins that are also present in higher concentration in exoplasm because these ion channels are impermeable to, or this membrane is impermeable to negatively charged proteins. So potassium in comparison to extracellular fluid, potassium is present in higher concentration in exoplasm. The exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium and negatively charged proteins and low concentration of sodium, and sodium concentration is low in the exoplasm at resting stage. It means sodium is present in higher amount in the extracellular fluid. In contrast, the fluid outside the axon contains, that is the extracellular fluid or interstitial fluid, contains a low concentration of sodium because low concentration of potassium because potassium is higher towards the inner side. It means potassium is present in lesser amount in extracellular fluid or interstitial fluid. Potassium is present in low amount, low concentration. A high concentration of sodium and thus form a concentration gradient, and sodium concentration is higher on the outer side than in comparison to inner side. So therefore a concentration gradient is present there. A high concentration of sodium present in the extracellular fluid thus form a concentration gradient because sodium is present in higher amount in the extracellular fluid and potassium is present in higher amount in intracellular fluid, that is the cytoplasm or exoplasm. These ionic gradients across the resting membrane are maintained by the active transport of ions by the sodium potassium pump. This gradient is maintained by this gradient of resting membrane potential, that is the sodium is present in higher amount in extracellular fluid and potassium is present in higher amount in exoplasm. This is maintained by the sodium potassium pump. What sodium potassium pump does? It contrasts the fluid outside the axon contains a low concentration of potassium and high concentration of sodium and thus form a concentration gradient. This ionic gradients across the resting membrane are maintained by the active transport of ions by sodium potassium pump. सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे काम कर रहा और इस सोडियम पोटेशियम पंप के काम करने की वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एक्शन में आने की वजह से सोडियम इज हायर ऑन द आउटर in the outer fluid, whereas potassium is higher in the intracellular fluid, that is exoplasm. This ionic gradient maintains across the resting membrane are maintained by active transport of ion by sodium potassium pump, which transports 3 sodium outwards and 2 potassium in the cell. As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface possesses negatively charged. While its inner surface becomes negatively charged and therefore is polarized. The electric potential difference across the resting membrane potential is called as resting potential. The electric potential difference across the membrane is called resting potential and it accounts near about minus 70 millivolt. So this is the condition: axonal membrane, sodium potassium pump operating over here. This causes the 3 sodium, it expels 3 sodium outside from the exoplasm into the extracellular fluid, and in turn it brings 2 potassium inwards. Therefore, a positive charge is developed on the outer surface, whereas negative charge developed inside to the inner surface. The electric potential difference across the resting plasma membrane is called resting potential. Okay.
This is called as, because sodium potassium pump transports 3 sodium outside. It expels 3 sodium from exoplasm into the extracellular fluid, and in turn it brings 2 potassium inwards and 2 potassium into the cell. So more positive charge is expelled from the exoplasm, therefore in the inner surface towards the inner surface negative charge is developed. As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface becomes negatively charged. Therefore, it is polarized. The electric potential difference across the resting plasma membrane is called as resting potential. Okay, you might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse. तो आपने देखा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज मेंटेन किया गया है। क्यों? क्योंकि एक पंप यहाँ काम कर रहा, पंप सोडियम पोटेशियम पंप जो एटीपी खर्च करेगा, उस एटीपी की सहायता से 3 सोडियम वो बाहर छोड़ाएगा मतलब 3 सोडियम यहाँ एक्सोप्लाज्म से उसने कैरी करके बाहर ले गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और 2 पोटेशियम अंदर ले आया। तो 3 धनात्मक चार्ज बाहर ले गया, 2 अंदर ले आया। इसका मतलब है बाहर की तरफ धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ डेवलप हो जाएगा और अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जब किसी भी सरफेस पे इस तरह से चार्ज डेवलप हो जाता है तब हम उसको पोलराइज्ड कहते हैं। तो ये पोलराइज्ड हो गई। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब आपको नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है इस बात को लेके बेचैनी हो रही होगी या आपको उत्सुकता हो रही होगी कि कैसे होता है। एंड इट्स कंडक्शन अलोंग एन एक्सोन, और इसका एक्सोन के एक्सोनल मेम्ब्रेन पे किस तरह से संवहन होता है। व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट ए, जब स्टिमुलस अप्लाइड किया साइट ए पे, ये साइट ए है मानिए, ऑन द पोलराइज मेम्ब्रेन, किसी भी पोलराइज मेम्ब्रेन पे जब आपने एक स्टिमुलस यहाँ अप्लाई किया, द मेम्ब्रेन एट दैट साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। द मेम्ब्रेन एट दैट साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। तो सोडियम ये जो आयन चैनल्स हैं खुल जाते हैं जब आप स्टिमुलस अप्लाई करते हैं पॉइंट ए पे। तो ये आयन चैनल्स जो कि पहले हम लोगों ने देखा, उसने बोला भाई ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन जब होती है तब ये आयन चैनल्स बंद है, आयन चैनल बंद है, और आयन चैनल बंद होने की वजह से बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हुए भी सोडियम अंदर की तरफ डिफ्यूज़ होकर नहीं आ पा रहा क्योंकि आयन चैनल क्लोज है। अब आपने क्या किया, आपने स्टिमुलस अप्लाई किया ऑन द पोलराइज मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन एट द पॉइंट ए बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। तो पॉइंट ए पे जब आपने अप्लाई कर दिया अपना, कहिए कि पॉइंट ए पे जब आपने अप्लाई कर दिया है, किसको, पॉइंट ए पे अप्लाई कर दिया आपने स्टिमुलस को, तो ये आयन चैनल खुल गए जो अभी तक बंद थे। आयन चैनल खुलेंगे तो सोडियम अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि सोडियम कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, सोडियम अंदर इनफ्लो कर जाएगा। दिस लीड्स टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी। तो सोडियम इतनी तेज़ी से अंदर आया है कि यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा अंदर की तरफ और बाहर हो जाएगा निगेटिव, केवल इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने स्टिमुलस अप्लाई किया। तो सोडियम चैनल खुलने की वजह से सोडियम एकदम तेज़ी से रैपिडली ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, डिफ्यूज़ कर जाएगा। रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट दैट साइड, दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द इनर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब ये आउटर सरफेस जो थी ये अब आपकी हो गई निगेटिवली चार्ज क्योंकि सोडियम बाहर से अंदर आ गया इस पॉइंट पे, केवल ए पॉइंट पे, केवल पॉइंट ए पे, और अंदर की तरफ ये पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि सोडियम अंदर आ गया। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज दस रिवर्स, इसलिए हम कहते हैं कि पोलैरिटी रिवर्स हो गई। पहले बाहर पॉजिटिव था, अंदर निगेटिव था। अब आफ्टर अप्लाइंग स्टिमुलस पॉजिटिव चार्ज डेवलप इनसाइड एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप आउटसाइड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड हैंस डीपोलराइज। अब ये हम कहेंगे डीपोलराइज हो गई। जब रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन हो गया
पोलराइज स्टेट का रिवर्सल हो गया, तब हम बोलेंगे कि ये मेम्ब्रेन कैसी हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई। ओके जी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए, एक्शन, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं एक्शन पोटेंशियल। तो पहले का जो ग्रेडियंट था उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोल रहे थे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ये हमारा चार्ज ग्रेडियंट डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो गया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट द साइट ए अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। तो उसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। अब एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं साइट ए पे, विच इज़ इनफैक्ट टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स, और जिसको हम लोग नर्व इम्पल्स भी बोल सकते हैं। तो स्टिमुलस लगाने के बाद जब पोलैरिटी रिवर्स हो गई, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया है। एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया क्योंकि क्या डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस साइट ए पे। साइट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ उसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं। अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, विच इज़ इनफैक्ट टर्म्ड एज, और इसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल को नर्व इम्पल्स भी बोल सकते हैं। ये जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ इसको हम लोग नर्व इम्पल्स भी कह सकते हैं, विच इज़ टर्म इनफैक्ट टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स एट साइट इमीडिएटली अहेड। अब इसके ठीक बगल में इमीडिएटली अहेड जो साइट है, एट साइट्स इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन membrane has a positive charge on the outer surface and negative charge on the inner surface। अब इस पॉइंट के बिल्कुल बगल में जो पॉइंट है उस पर आप देखेंगे कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज है। ये है साइट है जहाँ पे आपने स्टिमुलस अप्लाई किया। स्टिमुलस अप्लाई किया तो ये आयन चैनल खुल गए। आयन चैनल खुल गए तो सोडियम अंदर आ गया। सोडियम अंदर आने से क्या हुआ, सोडियम अंदर आने से यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और बाहर की तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट के ठीक बगल में क्या है, बी पॉइंट। बी पॉइंट पे क्या सीन है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज है। और ये जो अब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये डेवलप हुआ है स्टिमुलस अप्लाई करने पे, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं। और एक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग नर्व इम्पल्स बोल सकते हैं। अब इसके ठीक बगल में पॉइंट ए के बगल में पॉइंट बी है, और पॉइंट बी पे एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या चार्ज है, निगेटिव, जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। अंदर की तरफ निगेटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव। तो वहाँ तो वही है, केवल उस पॉइंट पे पोलैरिटी बदली है जिस पॉइंट पे आपने स्टिमुलस अप्लाई किया। केवल उस पॉइंट पे आयन चैनल खुले थे और उस पॉइंट पे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो गया था। तो अंदर की तरफ पॉजिटिव है, यहाँ अंदर की तरफ निगेटिव है, तो करंट कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। और यहाँ पे बी पॉइंट पे बाहर की तरफ क्या है, बी पॉइंट पे बाहर की तरफ पॉजिटिव है, ए पॉइंट पे अंदर की तरफ निगेटिव है। और बी पॉइंट से इधर ए की तरफ पॉजिटिव, ये करंट कैसे फ्लो होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ करंट कहाँ से किधर फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है बी टू ए, और अंदर की तरफ भी बी टू ए, अंदर की तरफ ए टू बी, अंदर की तरफ ए टू बी, इधर बी टू ए। करंट ऐसे फ्लो हो रहा क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। ओके, तो आप देखेंगे ये जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ था ए पे, वो शिफ्ट होके किधर आ जाएगा, बी पे, क्योंकि ये जब फ्लो हुआ करंट का, करंट के फ्लो होने से क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल एक स्टेप आगे बढ़ गया, बी पे आ गया। ठीक है, तो जब आपने अप्लाई किया था स्टिमुलस तो क्या हुआ था, रिवर्सल ऑफ एक्शन पोटेंशियल हुआ था। रिवर्सल ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पोलैरिटी जब मेंटेन होती रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसको हम लोग बोल रहे हैं
एक्शन पोटेंशियल, रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, जिसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं। रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, नॉट एक्शन पोटेंशियल। रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, जिसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं, और एक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग इम्पल्स बोल सकते हैं। ठीक है जी, ओके। आइए देखिए क्या हुआ है। एक्शन पोटेंशियल, नाउ इम्पल्स। इम्पल्स इस तरह से कैसे, जब इम्पल्स ये डेवलप हुआ है तो आपने इस पॉइंट पे जब स्टिमुलस लगाया तो इस पॉइंट पे रिवर्सल हो गई है, केवल यहाँ आयन चैनल खुलने से। अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर की तरफ निगेटिव। वैसे क्या है, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ निगेटिव। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो इसके ठीक बगल में जो पॉइंट है वहाँ पे पोलैरिटी अपोजिट है, तो प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो, प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो। तो ये जो यहाँ पे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुआ वो सरक के इधर आ जाएगा, फ्लो ऑफ करंट होगी, क्योंकि करंट फ्लो किधर से किधर होती है, पॉजिटिव से निगेटिव। Thus the impulse generated at the site A arrives at site B। ठीक है जी। On the outer surface current flow हो रही है from B to A to complete the circuit of the current flow। Hence, और inner surface पे किधर फ्लो हो रही है, from A to B। इनर सरफेस पे, क्योंकि अंदर की तरफ पॉजिटिव है, ए पे पॉजिटिव है, बी पे निगेटिव है, अंदर की तरफ ए टू बी और बाहर की तरफ बी टू ए। सर्किट आपका पूरा हो गया। सर्किट पूरा हो गया तो चार्ज जो यहाँ पे डेवलप हुआ था पॉजिटिव अंदर, अब वो आगे आ गया। अंदर अब पॉजिटिव है, बी पॉइंट पे अंदर की तरफ पॉजिटिव है, बाहर की तरफ निगेटिव है। ठीक है। दस द इम्पल्स जनरेटेड एट साइट ए अराइज एट साइट बी। द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। और ये जो क्रम है इसको रिपीट किया जाएगा ऑल अलॉन्ग द एक्सॉन। ये सरकते सरकते कहाँ आ जाएगा, एट द एंड आ जाएगा एक्सॉन के। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एंड तक आ जाएगा। टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो, हैंस द पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स्ड एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी। इसलिए क्या हुआ जी, अब ये पोलैरिटी इधर रिवर्स हो गई साइट बी पे और एक्शन पोटेंशियल साइट बी पे जनरेट हो गया। The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted। और इस तरह से इम्पल्स का कंडक्शन हो गया। ठीक है। The polarity of the site is reversed and action potential is generated at site B। पोलैरिटी रिवर्स हो गई और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया साइट बी पे। Thus the impulse generated at the site A, इम्पल्स जो जनरेट हुई है एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी, वो कहाँ आ गई, साइट बी पे आ गई। दस द इम्पल्स जनरेटेड, ये जो इम्पल्स यहाँ जनरेट हुआ था साइट ए, वो सरक के किस पे आ गया, साइट बी पे आ गया। द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। और इस सीक्वेंस का रिपीटिशन हुआ है ऑल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ एक्सॉन एंड कॉन्सिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड। और इसके परिणाम स्वरूप, इसके अपेक्षा के परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड, कि इम्पल्स का कंडक्शन हो गया। ओके। दस द इम्पल्स जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी। जो इम्पल्स जनरेट हुआ था साइट ए पे, वो इम्पल्स सरक के कहाँ आ गया, साइट बी पे आ गया। द सीक्वेंस इज रिपीटेड, और ये सीक्वेंस चलेगी ऐसे ही all along the length of axon and consequently the impulse is conducted। और इस तरह से इम्पल्स का कंडक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू लास्ट पॉइंट जेड तक हो जाएगा। द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस परमिबिलिटी टू सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। इसको समझिए। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमिबिलिटी, स्टिमुलस लगाएंगे, स्टिमुलस लगाने से क्या होगा, परमिबिलिटी इंक्रीज होगी। ये केवल कुछ समय के लिए, वेरी शॉर्ट लिव्ड है। दिस इज क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमिबिलिटी टू सोडियम। तो इसके तुरंत बाद क्या होगा, जब सोडियम अंदर आ गया तुरंत बाद क्या होगा कि पोटेशियम के लिए भी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। पोटेशियम के लिए वैसे ही थोड़ा बहुत परमिएबल था, 100% तो डेट था नहीं, लेकिन अब परमिबिलिटी और बढ़ गई। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूजेज आउटसाइड द मेम्ब्रेन।
अंदर की तरफ अब पॉजिटिव चार्ज है और बाहर की तरफ निगेटिव है। तो अब क्या होगा, अब होगा कि भैया ये जो हमारा गपड़ चौथ हो गई उसको हमें मेंटेन करना है। तो उसके लिए पोटेशियम बाहर चला जाएगा शुरू में। सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, it is quickly followed by a rise in permeability of potassium. The rise in the stimulus induced permeability to sodium is extremely short lived. अब ये जो स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी सोडियम की बढ़ी है ये केवल कुछ मिली सेकेंड्स के लिए है। उसके बाद क्या होगा, इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम आयन खुल जाएंगे, पोटेशियम आयन गेट्स खुलेंगे, ठीक है। फॉलोड बाय राइज इन द परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन। तो जैसे ही पोटेशियम की परमेबिलिटी बढ़ी तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूज़ कर जाएगा। पोटेशियम कहाँ आ जाएगा, डिफ्यूज़ होकर फिर से बाहर आ जाएगा। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूजेस एंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल। और रेस्टिंग पोटेंशियल की जो सीन था उसको पुनः स्थापित कर लिया गया। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ निगेटिव था। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुई, अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया, बाहर की तरफ निगेटिव हो गया। तो अब इसको वापस हमारा किसको मेंटेन करना है, रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल को। रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल को बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ निगेटिव। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी टू सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। ये जो राइज हुआ है स्टिमुलस की वजह से, स्टिमुलस अप्लाई करने की वजह से सोडियम की परमेबिलिटी में ये बहुत थोड़ी देर के लिए। इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय राइज इन द परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम विच इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूजेस outside the membrane and restores the resting potential of membrane at the site of excitation। तो सोडियम की परमेबिलिटी जो बढ़ी थी स्टिमुलस अप्लाई करने से वो बहुत थोड़ी देर के लिए थी। उसके तुरंत बाद क्या हुआ, उसके बाद परमेबिलिटी बढ़ रही है पोटेशियम के लिए और कुछ ही मिली सेकेंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सेकेंड के भी कुछ 10,000वें भाग से कहिए, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन। पोटेशियम डिफ्यूज होके चला जाएगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ जाता है। एंड रीस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल, और फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल की स्थिति मेंटेन कर दी गई कि बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ निगेटिव। एंड रीस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, उस साइट पे, साइट ऑफ एक्साइटेशन पे। एंड द फाइबर्स बिकम वन मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। अब ये जब फिर से रिस्टोर हो गया तो ये जो फाइबर है, नर्व फाइबर, ये फिर से अब सेंसिटिव हो गया एक्शन पोटेंशियल के, कि एक्शन पोटेंशियल इसको मिलेगा, ये फिर से डिपोलराइज होगा, फिर से एक वेव दौड़ जाएगी, एक करंट दौड़ जाएगी किसकी, डिपोलराइजेशन की। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूजेज आउटसाइड द मेम्ब्रेन and restores the resting potential of membrane at the site of excitation and fiber become one more responsive to further stimulation। ओके, तो आपने क्या देखा कि ये जो हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन है रेस्टिंग कंडीशन में, इस पर बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज है। कैसे? क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, 3 सोडियम बाहर छोड़ देगा, 2 पोटेशियम अंदर ले आएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे प्रोटीन्स है उनके लिए ये मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर की तरफ है। अब आपने स्टिमुलस लगा दिया एट द पॉइंट ए। चलिए, ये पॉइंट ए पे जब आपने स्टिमुलस अप्लाई किया इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, ये आयन चैनल खुल जाएंगे। आयन चैनल खुलने से क्या होगा, आयन चैनल खुलने से ही तो सब कुछ है। आयन चैनल खुल गए अगर, तो सोडियम फटाक से अंदर आ जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगा, इतनी तेज़ी से अंदर आएगा कि अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर की तरफ निगेटिव हो गया।
उससे क्या होगा, इसके बगल में ये पॉइंट ए है जहाँ स्टिमुलस लगा, पॉइंट बी पे क्या है, बाहर की तरफ पॉजिटिव है, अंदर की तरफ नेगेटिव है, तो फ्लो ऑफ करंट होगा प्लस टू माइनस। तो ये जो पोलैरिटी डेवलप, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुई थी, ये सरक के किधर आ जाएगा, पॉइंट बी पे। अब पॉइंट सी पे क्या है, पॉइंट बी पे अब ये कंडीशन आ गई, और पॉइंट सी पे बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव। अब ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो गई पॉइंट बी पे, ये अंदर की तरफ पॉजिटिव, बाहर की तरफ नेगेटिव। तो फिर से फ्लो करंट होगा, इस तरह से फ्लो करता करता कहाँ आ जाएगा, आखिरी तक आ जाएगा। ये बात बताई गई है। फिर उसने बोला कि जैसे ही आप स्टिमुलस लगाते हो, स्टिमुलस लगते ही पॉइंट ए पे जैसे ही ये सोडियम अंदर आए, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर के लिए आयन चैनल खोलें, उसके तुरंत बाद क्या होगा, उसके तुरंत बाद ये होगा कि ये पॉइंट पे अब पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, और पोटेशियम के बाहर निकलने से जो हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन थी वो यहाँ पे रीस्टोर हो जाएगी, और ये फिर से तैयार है फाइबर अब एक नए स्टिमुलस की सेवा में हाजिर है कि भैया नया स्टिमुलस आए, हम फिर से डिपोलराइज हो जाएंगे। ओके, ये हुआ आपका इस एक्साइटेशन और उसका कंडक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है जी, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात हो गई। चलिए अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाएं। उससे पहले हम लोग क्या कर लें, हम लोग उससे पहले एक और पढ़ लेते हैं टॉपिक, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस पढ़ लेते हैं। तो इम्पल्स कहाँ तक पहुँच गए हैं, नर्व फाइबर के एंड तक पहुँच गए हैं। A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called synapses. तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, किसकी सहायता से, साइनेप्सिस की सहायता से। A synapse is formed by the membrane of a pre-synaptic neuron and post-synaptic neuron. तो pre-synaptic neuron and post-synaptic neuron के बीच में जो संबंध बन रहा है उसको हम बोलना है साइनेप्स। A synapse is formed by the membrane of the presynaptic neuron। ये प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन है साइनेप्स से पहले, और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। Which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। तो यहाँ पे गैप हो भी सकता है इन दोनों के बीच में, और नहीं भी हो सकता। अगर गैप है तो कहला रहा है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। There are two types of synapses, namely electrical synapses and chemical synapses। जब ये जो synapses हैं, एक न्यूरॉन की एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन की शुरुआत, इसमें दो तरह के साइनेप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, इलेक्ट्रिक साइनेप्स एज वेल एज केमिकल साइनेप्स। एट इलेक्ट्रिक साइनेप्सेस द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इलेक्ट्रिक साइनेप्स पे ये जो हमारा न्यूरॉन की एंडिंग है और अगले वाले न्यूरॉन की शुरुआत है एक्सॉन है, ये लोग इतनी पास है कि बहुत ही पास है। द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दिस साइनेप्सिस। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, इतने पास है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अनदर न्यूरॉन the other across this synapses के across ये flow of current हो सकता। Transmission of impulse across electric synapses very similar to, ठीक है जी। तो एक साइनेप्स से दूसरे साइनेप्स में, ये इलेक्ट्रिक साइनेप्स है, ये इतने पास होते हैं कि इसमें फ्लो ऑफ करंट ऐसे होगा जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट पे फ्लो ऑफ करंट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस, नेमली electric synapse and chemical synapse. Electric synapse, the membrane of the presynaptic and postsynaptic neuron. This is the ending of the presynaptic neuron and this is the beginning of postsynaptic neuron. The postsynaptic neurons are in very close proximity. Electric current can flow directly. So electric current can flow directly from one neuron into the another across these synapses. Transmission of an impulse across electric synapses very much similar to impulse conduction along a single axon। तो ये इतने पास हैं कि इसमें ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर ऐसे हो रहा है कि ये लोग जैसे सिंगल यूनिट है, इतने पास है, एक ही न्यूरॉन है।
along a single axon. Impulse transmission across an electric synapse is always faster than across a chemical synapse. तो chemical synapse की तुलना में इलेक्ट्रिक synapse में ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होगा ये इतना फास्टर होगा कि उसकी तुलना में हमेशा फास्टर होगा. इलेक्ट्रिक साइनेप्स में ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज फास्टर देन इन कंपैरिजन टू द हमारा दूसरा इम्पल्स केमिकल इम्पल्स के तुलना में. इलेक्ट्रिक साइनेप्सेस आर रेयर इन आवर सिस्टम, और हम लोग के सिस्टम में इलेक्ट्रिक साइनेप्सेस कोई बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पाए जाते, रेयर है. ठीक है जी. एट केमिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस. तो इस वाले केस में हमारे केमिकल साइनेप्स में वहाँ पे तो बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, और उस गैप में क्या है, उस गैप में ये पे स्पेस जो है वो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, इसको हम बोल रहे हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट. डू यू नो how the presynaptic neuron transmits an impulse across the synaptic cleft to the postsynaptic neuron? नहीं, अभी पढ़ा ही नहीं तो अभी कहाँ मालूम पड़ेंगे, मालूम पड़ जाएगा. Chemicals called neurotransmitter are involved in the transmission of impulses at these synapses. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल्स जो हेल्प कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा देंगे या इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करवाएंगे. केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एट दिस साइनेप्सेस. द एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल्स. ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, साइनेप्टिक नॉब है, यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं विच आर फिल्ड विद दिस न्यूरोट्रांसमीटर. When an impulse action potential arise at axon terminal, जब यहाँ पे ऊपर से एक्शन पोटेंशियल चलता हुआ ट्रैवल करता हुआ आता है और इसके बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे पहुँचता है. When an impulse action potential arise at axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicles towards the membrane. तो एक्शन पोटेंशियल के यहाँ आने की वजह से, इम्पल्स के आने की वजह से ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये मूव होती हैं और यहाँ पे आके इससे मर्ज हो जाती हैं मेम्ब्रेन से. इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल्स टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जहाँ पे ये साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो जाएंगी किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है जी. तो ये देखिए ऊपर से एक्शन पोटेंशियल आया, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये उसमें न्यूरोट्रांसमीटर है. एक्शन पोटेंशियल जब बिल्कुल एंड पे पहुंचा तो उसकी वजह से ये अब ये जो हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिनके अंदर केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, वो आके मर्ज हो जाएंगी या इसके साथ अटैच हो जाएंगी किससे, न्यूरल एक्सॉन की ये मेम्ब्रेन की एंडिंग से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है जी. मर्ज हो जाएंगी तो क्या करेंगी, मर्ज हो जाएंगी तो अपना कंटेंट जो इनका कंटेंट है पोर कर देंगी, उड़ेल देंगी. कहाँ पे, ये है हमारा साइनेप्टिक फ्लूइड, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में साइनेप्टिक फ्लूइड, उसमें साइनेप्टिक फ्लूइड में ये उड़ेल देंगी क्या, न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ पे अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए, ये जाके अटैच हो जाएंगे किससे, ये रिसेप्टर है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे. पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर. ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके इससे अटैच हो जाएंगे और इसमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस करेंगे जिससे ये आयन चैनल खुल जाएंगे. चलिए आगे पढ़ते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा. तो membrane and releases their neurotransmitter into the synaptic cleft. The released neurotransmitter bind to their specific receptor. न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुए, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे मौजूद रिसेप्टर से बाइंड कर गए, प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. दिस बाइंडिंग ओपन साइन चैनल, और इनके बाइंड होने से आयन चैनल ओपन हो गए, अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयन. आयन चैनल ओपन होने से एंट्री ऑफ आयन, भाई बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा, अंदर की तरफ सोडियम कम है तो सोडियम अंदर डिफ्यूज़ होके आ जाएगा.
और सोडियम के डिफ्यूज़ होकर आने से रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो जाएगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक, विच कैन जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। द न्यू पोटेंशियल डेवलप में बी आइदर एक्साइटेटरी और इनिबिटरी। अब ये जो नया पोटेंशियल डेवलप हुआ है या तो ये एक्साइटेटरी है और या इनिबिटरी है। तो जो नया एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, वो दो तरह का हो सकता है। एक्साइटेटरी जो उसको एक्साइट करे, या इनिबिटरी जो उसको इनिबिट करे कि भाई अब चुपचाप शांत बैठो, रोना पिटना ना मचाओ। ठीक है जी। तो अब हम लोग इसके अगले वाले सेक्शन पे चलें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ें। उससे अच्छा ये है कि अभी तक जो पढ़ा उसके हम लोग क्वेश्चन लगा लें, और फिर अगर हम लोग के पास टाइम बचेगा तो नियर अबाउट 44 मिनट की 44 मिनट की हमारी हो गई है आपकी ये वीडियो। अगर उसके बाद इच्छा शक्ति बचेगी, क्षमता बचेगी, तो हम लोग सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को डिस्कस करेंगे, वरना आज इतने में ही छुट्टी कर देंगे। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लें, हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लें जो टॉपिक पढ़ लिए। चलिए, तो जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात हो रही थी। क्वेश्चन मैं सर्च कर रहा हूँ कि कहाँ पे मिलेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ लगा ले, तो फिर हम लोग अगले में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है जी। यहाँ से आप लोगों ने पढ़ा था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, ये सब तो आप लोग को, हाँ ये देखिए अपनी एनसीईआरटी खोलिए, वहाँ पे लिख लीजिए एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू लगभग कितनी है, लगभग 70। रेस्टिंग पोटेंशियल 70 मिली वोल्ट का होता है। यहाँ से ये पॉइंट आप नोट कर लो अपनी एनसीईआरटी में। रेस्टिंग पोटेंशियल जो है 70 मिली वोल्ट का है। पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन 30 टाइम्स मोर इनसाइड द, पोटेशियम आयन अंदर ज़्यादा थे और सोडियम आयन बाहर ज़्यादा थे। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर 10 टाइम्स ज़्यादा है एक्सोप्लाज्म से, और पोटेशियम की कंसंट्रेशन 30 टाइम्स ज़्यादा है बाहर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। ये दो बातें अगर आप लिखना चाहो लिख लो। ठीक है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 70 मिली वोल्ट। ठीक है जी। चलिए आगे चलें। एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस हो गई बात, ये तो यार तो ये डिफरेंट तरह की आयन चैनल्स दिखाए हैं उसने। देखिए प्रोटीन के लिए दिखाया है, प्रोटीन के लिए, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, अलग अलग तरह के उसने आयन चैनल दिखाए हैं कि आयन चैनल होते हैं। ठीक है। पोटेशियम के लिए, सोडियम के लिए, क्लोराइड के लिए अलग अलग उसने आयन चैनल आपको दिखाए। ये सोडियम हो गया, पोटेशियम को बाहर छोड़ रहा, 3 पोटेशियम बाहर छोड़े, 2 सोडियम अंदर ले, 3 सोडियम बाहर छोड़े, 2 पोटेशियम अंदर ले आया। 3 सोडियम बाहर छोड़े, 2 पोटेंशियल अंदर ले आया। ये उसमें आपको समझाने की कोशिश करी गई है।
-70 मिली वोल्ट से -70 मिली वोल्ट है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ पॉजिटिव है। और जब ये सोडियम अंदर आ जाता है तब ये -70 से +30 तक चला जाता है। पूछा नहीं जाएगा आपसे, इसको छोड़ दो। ये रिफ्रैक्टिव पीरियड और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या, ये अगर आप एलन के मॉड्यूल देखेंगे तो वहाँ दे रखा, पूछा नहीं जाता, इसको भी छोड़ दीजिए। वैसे रिफ्रैक्टिव पीरियड वो है डीपोलराइजेशन पीरियड, रिटर्न्स द सेल टू इट्स रेस्टिंग पोटेंशियल, द न्यूरॉन इज नाउ प्रिपेयर्ड टू रिसीव अनदर इम्पल्स stimulus and conducted in the same manner. In fact, until repolarization occur, neuron cannot conduct another impulse. तो रिफ्रैक्टिव पीरियड आपका ये कि डीपोलराइज होने के बाद वापस रीपोलराइज होने तक के बीच में की जो अवस्था है उसको हम रिफ्रैक्टिव पीरियड बोल रहे हैं। तो उस दौरान अगर उस पर इम्पल्स एक बार फिर से आएगा तो वो एक्साइट नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। पूछा नहीं जाएगा, रहने दीजिए, आप कंफ्यूज ना होइए। हम लोग वही पढ़ें जो एनसीईआरटी का है। ऑल्टरनेटिव कंडक्शन आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ते, आगे पढ़ेंगे। आइए चलिए देखिए क्वेश्चन आ गए। डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक प्लेस बिकॉज, डीपोलराइज क्यों हुआ था? डीपोलराइज इसलिए हुआ था, पोलराइज से डीपोलराइज, सोडियम अंदर आ गए थे। सोडियम मूव्स इनसाइड एंड पोटेशियम मूव्स आउटसाइड। तो सोडियम अंदर आ गए थे, तो सोडियम के अंदर आने से ये डीपोलराइज्ड हो गया था, और पोटेशियम के बाहर जाने से वो रीपोलराइज्ड होगा। तो सोडियम अंदर आ गए थे, मोर सोडियम आउटसाइड। डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक प्लेस बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम पोटेशियम मूव, sodium move inside, potassium move outside, more sodium outside, less potassium move inside, ना sodium move inside और हमारा potassium move outside। तो आंसर है हमारा सोडियम का मूवमेंट हुआ इनसाइड। ठीक है जी, सोडियम मूव इनसाइड एंड पोटेशियम मूव आउटसाइड। आंसर है हमारा सोडियम मूव इनसाइड। सोडियम के अंदर आने की वजह से डीपोलराइजेशन हुआ है। ठीक है, तो इसमें वैसे आपका होना चाहिए सोडियम मूव्स इनसाइड एंड पोटेशियम मूव आउटसाइड को हटा दो, ये नहीं होना चाहिए मूव आउटसाइड, क्योंकि डीपोलराइजेशन सोडियम के अंदर आने से हुआ है। सोडियम अंदर आया तो ये डीपोलराइज हो गया। When a neuron in its resting state, not conducting any impulse, इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, न्यूरॉन जो है रेस्टिंग स्टेट में है, तो न्यूरॉन जब रेस्टिंग स्टेट में है, इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, तब एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है जब वो कंडक्ट नहीं कर रहा, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम। यही बात ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन में क्या है कि कुछ आयन चैनल्स खुले होते हैं पोटेशियम के लिए, तो पोटेशियम के लिए तो कुछ परमिएबल है, लेकिन सोडियम के लिए इम्परमिएबल है। कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू सोडियम, सोडियम के लिए तो ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है। इक्वली परमिएबल नहीं, इम्परमिएबल टू बोथ नहीं। हम लोग का ए जवाब ठीक है, ये आपकी बुक की दे रखा है बुक में, तो आंसर ए करेक्ट है, करेक्ट आंसर। चलिए सी अगले क्वेश्चन पे चलें। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट। एक्शन पोटेंशियल क्यों बना? क्योंकि सोडियम अंदर आ गया है। सोडियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर, हाँ सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, इंटरस्टिशियल स्पेस से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गया, यही जवाब ठीक है। पोटेशियम फ्रॉम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेलुलर, पोटेशियम के तो बाहर जाने से वो फिर से डीपोलराइज्ड होगा। पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं, ये कारण नहीं है। इसको तो जब सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है तो पोटेशियम को अंदर लेके आता है, तो इसकी वजह से तो पोलराइज्ड होती है। वो पूछ रहा डीपोलराइज प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स,
एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ। एक्शन पोटेंशियल क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि जब स्टिमुलस इस पॉइंट पे लगाया आयन चैनल खुल गए, आयन चैनल खुलने से सोडियम अंदर आया, सोडियम अंदर आने से एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए आगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इतनी लंबी कहानी है जो समझा रखी है वो तो आपने समझ ही ली है, उसको बार बार क्या पढ़ें। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर, ठीक, द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इसका कंडक्शन होता तो पहले सबसे पहले क्या था? सबसे पहले बाहर था पॉजिटिव, पॉजिटिव से हुआ निगेटिव और निगेटिव से फिर हुआ पॉजिटिव। पॉजिटिव था तो ये पोलराइज स्टेज में थी, जब एक्शन पोटेंशियल आया निगेटिव हो गया, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो गई और उसके बाद फिर से रीस्टोर हो जाएगा तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। फर्स्ट निगेटिव ना हटा दीजिए, पढ़िए ही मत आगे। फर्स्ट निगेटिव पढ़िए ही मत आगे, फर्स्ट निगेटिव पढ़िए ही मत आगे, फर्स्ट पॉजिटिव देन निगेटिव एंड अगेन बैक टू पॉजिटिव। इस वाले को आप चुन लीजिए। तो फर्स्ट निगेटिव देन पॉजिटिव कंटिन्यू टू निगेटिव, निगेटिव नहीं बाहर की तरफ है। उन्होंने पूछा कहाँ? ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड। अच्छा, इनर साइड पूछ रहा, रुक जाइए, इनर साइड पूछ रहा। मैंने ये जो जवाब आपको दिया ये आउटर साइड के लिए दिया। तो इनर साइड पे पहले निगेटिव है और बाद में पॉजिटिव हुआ और बाद में फिर निगेटिव। तो फर्स्ट निगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू निगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव फर्स्ट निगेटिव देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू बी निगेटिव, कंटिन्यू टू बी निगेटिव नहीं, फर्स्ट निगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू निगेटिव। हम लोग इसको चुनेंगे ए को कि पहले निगेटिव था अंदर की तरफ, आयन चैनल खुलने से सोडियम अंदर आने से पॉजिटिव हुआ, उसके बाद पोटेशियम चैनल खुलेंगे, पोटेशियम बाहर जाने से फिर से निगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट निगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू निगेटिव। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट चॉइस। यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए देखिए करेक्ट चॉइस बता रहा। चलिए आगे चले। इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ अलाउड वुड ड्राइव। अगर ये रेस्टिंग कंडीशन में ही किसी तरह से आप डिफ्यूज़न अलाउ कर दें, डिफ्यूज़न अलाउ कर देंगे तो क्या होगा? सोडियम भरभरा के अंदर आ जाएगा, पोटेशियम बाहर चला जाएगा। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जैसा आपने देखा, सोडियम बाहर ज़्यादा पोटेशियम अंदर ज़्यादा। तो अगर डिफ्यूज़न अलाउ हो जाए, किसी तरह से ये चैनल खुल जाए तो सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर। सोडियम इनटू द सेल, ठीक है, सोडियम आउट ऑफ द सेल ना, वो तो ज़बरदस्ती हम पंप से लगा के छोड़ के आते हैं। पोटेशियम इनटू द सेल, पोटेशियम इनटू द सेल कैसे आएगा? नहीं आएगा, पोटेशियम अंदर ज़्यादा पोटेशियम बाहर जाएगा। सोडियम पोटेशियम बोथ आउट ऑफ द सेल, दोनों नहीं। तो हमारा जवाब क्या है? सोडियम इनसाइड द सेल आ जाएगा, सोडियम इनसाइड द सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नोड्स ऑफ एनवियर? नोड्स ऑफ एनवियर, तो यहाँ पे श्वान सेल है, श्वान सेल ने बना दिया न्यूरोलेमा और उनके बीच बीच में जहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर में माइलिन शीट नहीं है, उसको बोल रहे हैं नोड्स ऑफ एनवियर। तो नोड्स ऑफ एनवियर कहाँ पे है? जहाँ पे माइलिन शीट डिसकंटिन्यूअस है। आपका जवाब क्या होगा? वेयर माइलिन शीट इज डिसकंटिन्यूअस। चलिए आगे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग श्वान सेल। श्वान सेल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताओ 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 बताओ। सराउंड एक्सॉन ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, सपोर्ट मसल फाइबर हटाओ, फाउंड इन हैवर्सन सिस्टम बोन हटाओ, फॉर्म बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियम हटाओ। सराउंड द एक्सॉन ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, वेयर एज नॉन माइलिनेटेड में भी हो सकता है, तो लेकिन खैर आप इसी को सराउंड एक्सॉन को क्या कर रही है? अनोलप कर रही है और उसको घेर रही है और माइलिनेटेड नर्व फाइबर के मतलब मिलेगी आपको। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, तो ये साइनेप्स। अच्छा, एक दो चीज़ें यहाँ से उठा लो बच्चा, देखो चलो। साइनेप्स, तो सर चार्ल्स शेरिंगटन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म साइनेप्स। यहाँ से ये उठाइए लाइन, पॉज करिए, इसको लिख लीजिए। सर चार्ल्स शेरिंगटन, चार्ल्स शेरिंगटन वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले साइनेप्स टर्म को यूज़ किया। साइनेप्स क्या है? जंक्शन पॉइंट बिटवीन टू न्यूरॉन। साइनेप्स इज एन एरिया ऑफ फंक्शनल कॉन्टैक्ट बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अनदर, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, जहाँ पे क्रियात्मक रूप से उनके बीच में फंक्शनल कॉन्टैक्ट संपर्क बन रहा, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, जिससे एक से इंफॉर्मेशन दूसरे में जा रही है। ठीक है जी, वो है साइनेप्स।
उठा लीजिए यहाँ से, जो आपको नहीं दे रखा उन्होंने अपने। 2 टाइप्स ऑफ साइनेप्सेज हैं, इलेक्ट्रिक साइनेप्स और केमिकल। इलेक्ट्रिक साइनेप्स में कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन टू द अनदर, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है एक एक्सॉन में जैसे फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक साइनेप्सेज आर रेयर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी वहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है कि ये रेयर होते हैं इलेक्ट्रिक साइनेप्सेज। तो इलेक्ट्रिक साइनेप्सेज हैं क्या, ये देखिए। ऊपर से एक्शन पोटेंशियल आया, वो इतने पास हैं कि उनके बीच में एक तरह से कनेक्शन बने हुए हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बने हुए हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा यहाँ कहाँ आ गया, सॉरी। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एट इलेक्ट्रिक साइनेप्स। इलेक्ट्रिक साइनेप्स देयर इज अ कंटिन्यूटी बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। द कंटिन्यूटी इज प्रोवाइडेड बाय द गैप जंक्शन। ये लिख लीजिएगा, ये जो कंटिन्यूटी है ये गैप जंक्शन की वजह से। आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में ये गैप जंक्शन का जिक्र आएगा। तो गैप जंक्शंस हैं, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा आपसे, हो सकता है पूछ लिया जाए कि ये जो इलेक्ट्रिक साइनेप्स हैं उनमें जंक्शन किस तरह का गैप जंक्शन है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। द गैप जंक्शंस आर स्मॉल प्रोटीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो गैप जंक्शन है क्या कि इनके बीच में एक तरह से प्रोटीन की ट्यूब है, प्रोटीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट अलाउ फ्री मूवमेंट्स ऑफ आयन। तो प्रोटीन के ये आपके ब्रिज बन गया प्रोटीन ट्यूब का, जिससे आयन इधर से इधर आ जाएंगे और फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा। तो ये बात लिख लीजिएगा, एक छोटी सी बात कि ये गैप जंक्शन के उस पर काम करता है। केमिकल साइनेप्स में आपने देखा कि दोनों के बीच में दूरी होगी, उन दोनों के बीच में साइनेप्टिक लेफ्ट और उसमें साइनेप्टिक फ्लूइड। अ टिपिकल कंसिस्ट ऑफ बल्बस एक्सपेंशन नर्व टर्मिनल प्री साइनेप्टिक नॉब है। साइटोप्लाज्म ऑफ साइनेप्टिक नॉब कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे चलता हूँ, कोई नहीं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसका ट्रांसमिशन देखें आप कैसे होता है केमिकल हमारे साइनेप्स में। व्हेन एन इम्पल्स अराइव्स एट एक्सॉन टर्मिनल स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। सब पढ़ ही चुके हैं आप। मेम्ब्रेन पे आया और वहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स आई और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो कहिए कि अटैच हो गई और न्यूरोट्रांसमीटर उसने पोर कर दिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो गया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे मौजूद हमारे किससे, रिसेप्टर से। दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल खुल गए और इस तरह से एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। ये एक्शन पोटेंशियल एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है जी, आगे चलूँ। आगे एक दो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग मिलेंगी जो आपके उसमें नहीं है। केमिकल्स आर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल हैं दैट इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, ये तो बात हो गई, और मेम्ब्रेन, ये सब बातें हो गई, इसको छोड़िए। न्यूरोट्रांसमीटर जो है केमिकल का। दीज मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय गैप साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये भी आप समझ गए। कंटेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल रिसेप्टर साइड न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक। द टू मेन न्यूरोट्रांसमीटर, जो दो मेन न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो एसिटाइल कोलिन और नॉर एड्रिनलिन है। ये उठाइए यहाँ से यहाँ तक। द टू मेन न्यूरोट्रांसमीटर इन वर्टिब्रेट्स नर्वस सिस्टम, वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम में जो दो मेन न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो है एसिटाइल कोलिन ACH और नॉर एड्रिनलिन। एसिटाइल कोलिन और नॉर एड्रिनलिन, हालांकि और भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं लेकिन ये दो मेन हैं। एसिटाइल कोलिन वॉज द फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर। इसको सबसे पहले किसने देखा, आइसोलेट किया, ओटो लेवी ने इन 1920। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसको रहने दो कि ये हुआ था। Neurons releasing acetylcholine are described as cholinergic neurons and that releasing noradrenaline are adrenergic। ये वाली बातें लिख लीजिए, ये आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो वो न्यूरॉन जिनके आखिरी में एक्सॉन की टर्मिनल एंडिंग बटन अगर रिलीज़ कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन कहलाएंगे, और अगर वो रिलीज़ कर रहे हैं नॉर एड्रिनलिन तो वो एड्रिनर्जिक कहलाएंगे। ये वाली लाइनें इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लो पॉज करके। तो न्यूरॉन्स दो तरह के, अगर न्यूरॉन एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कर रहा है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आखिरी में आके बटन से उसके,
हमारे टर्मिनल बटन से। अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कर रहा है तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, अगर नॉर एडिनलिन रिलीज़ कर रहा है तो एडिनर्जिक न्यूरॉन है। ठीक है, चलिए आगे। इन इलेक्ट्रिक साइनेप्स, तो इलेक्ट्रिक साइनेप्स में आपने देख ही लिया कि कैसे होता है, गैप जंक्शन से होता। चलिए आगे। इलेक्ट्रिक साइनेप्स मिल कहाँ रहा, हम लोगों ने बोला ना बहुत कम जगह मिलता, कार्डियक मसल्स में मिल रहा। कार्डियक मसल्स में इलेक्ट्रिक साइनेप्स होता है, ये यहाँ से उठा लो इम्पोर्टेंट, जो वहाँ लिखा कि हम लोग के सिस्टम में बहुत कम है, कार्डियक मसल फाइबर में इलेक्ट्रिक साइनेप्स मिल रहा। स्मूथ मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड एपिथेलियल सेल्स ऑफ लेंस। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो कार्डियक मसल ही पूछा जाएगा। स्मूथ मसल फाइबर इंटेस्टाइन में, उसमें भी आपको हमें कैसा मिल रहा है, इलेक्ट्रिक साइनेप्स और एपिथेलियल सेल्स, लेंस की आई में जो लेंस है एपिथेलियल सेल्स, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक साइनेप्स मिल रहा है। लेकिन आपको मेन क्या याद रखना है, कार्डियक मसल्स को याद में रखना है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एड्रेस, ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स पे कैसे होता है, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन केमिकल साइनेप्स पे कैसे होता है। केमिकल के रिलीज होने से न्यूरोट्रांसमीटर, ये सबसे पहले किसने बताया साइनेप्स, हेनरी डेल। हेनरी डेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइनेप्स को डिस्क्राइब किया है, डिस्कवर किया है। न्यूरोट्रांसमीटर की बात हो गई, एसिटाइल कोलिन वगैरह की बात हो गई। गाबा जो है हमारा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, इसको आप नोट करें। गामा ये हमारा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये क्या है, रिलीजेज बाय साइनेप्टिक नर्व्स ऑफ फाइबर्स ऑफ सम इंटरन्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ ऐसे न्यूरॉन हैं, इंटरन्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच के न्यूरॉन, जो रिलीज करते हैं गाबा। ये इनिबिट्स द पोस्ट साइनेप्टिक रीजनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये इसके पीछे वाले जो न्यूरॉन है, जो साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसके साथ वाला न्यूरॉन होगा, उस पर उसको ये क्या कर देगा, हाइपर पोलराइज कर देगा। तो इनिबिट्स द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये इनिबिटरी टाइप का है, इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, गाबा। ओके जी, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, कॉर्टिसोन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर की श्रेणी में नहीं आता, तो डी हो जाएगा। पार्किंसंस डिजीज इज कॉज बाय डिजनरेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन। पार्किंसन डिजीज ब्रेन न्यूरॉन के डिस्ट्रक्शन से हो गई। इन्वॉल्व इन द मूवमेंट कंट्रोल एंड मेक यूज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो कौन से ऐसे न्यूरॉन हैं जिसके डिजनरेट हो जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे। पार्किंसन डिजीज़ आपको किस में मिलेगी, पार्किंसन डिजीज़ आपको ये जो हमारे हैवीवेट बॉक्सर थे मोहम्मद अली, उनको भी हुई थी पार्किंसंस डिजीज़। और कारण क्या था कि डोपामिन की डेफिशिएंसी हो गई थी, डोपामिन। पार्किंसन डिजीज़ इज क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर। तो हाथ और पाँव पे कंट्रोल नहीं रहता, हाथ हिलते रहते हैं। विच इन्वॉल्व्स अ मेल फंक्शन एंड डेथ ऑफ न्यूरॉन। क्यों हो गया, क्योंकि न्यूरॉन मर रहे हैं और न्यूरॉन प्रॉपर काम नहीं कर रहे। द डाइंग न्यूरॉन प्रोड्यूसेस डोपामिन, अ न्यूरोट्रांसमीटर, टू द पार्ट ऑफ अ ब्रेन दैट कंट्रोल्स मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। However, drop in the dopamine level leads to the greater symptoms of Parkinson's disease. तो ये न्यूरॉन, जो न्यूरॉन प्रोड्यूस कर रहे थे डोपामिन, वो न्यूरॉन के मरने से या काम ना करने से ये डिजीज़ आ गई है। और डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा तो उससे कंट्रोल नहीं रहेगा हाथ पैर के मूवमेंट पे। तो डोपामिन, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो न्यूरॉन ब्रेन के जो डोपामिन जनरेट करते हैं, उनका अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए, अगर वो डेड होने लगे या काम ना करें, तो क्या डिजीज़ हो जाएगी हम लोग को, पार्किंसंस डिजीज़ हो जाएगी। इसको इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। एरिया ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ टू न्यूरॉन एंड्स इनटू अ इन विच द, एक में डेंड्राइट की एंडिंग, एक की डेंड्राइट की शुरुआत है और एक्सॉन की एंडिंग है। एक्सॉन एंड है, डेंड्राइट की शुरुआत है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे, साइनेप्स।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ये हम लोग पढ़ने तो फिर क्वेश्चन लगाने आते हैं। ठीक है जी, तो चलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये अब हम लोगों ने पढ़ना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसको हम लोग ब्रेक के बाद पढ़ते हैं, 1 घंटे से ऊपर की हो गई आपकी वीडियो, इसको आप पढ़िए, इसके आप लगाइए क्वेश्चंस और आगे की तैयारी करें, फिर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आते हैं। ठीक है जी, तो आपको एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ, कैसे उसका प्रोपोगेशन होगा, साइनप्स पे कैसे ट्रांसफ़र होगा, साइनप्स कितने तरह के हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का रोल क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो इसको आप रिवाइज़ करिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन हिट कर दीजिए। तो एंजॉय करिए, हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड लक, गुड बाय फॉर द अपकमिंग वीडियो। हम लोग मिलेंगे एक ब्रेक के छोटे से अंतराल के बाद। थैंक यू।